Dear friends, now we are going to learn how we can change sentences from active voice into passive voice. So let us solve some sentences. Before that, I want to recall your attention towards the chart that we have made yesterday in the last class. Now, a short form of the chart has been given here again in order to have a quick look at it. There are 8 tenses as we know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tenses are there. The name of the tenses are written here, and the verb forms that happen to be in each each tense is also shown here. So now let us first of all analyze. If suppose the sentence is with the first form of the verb, then the tense will be present tense, simple present tense. For example, eat. Eat is the first form. If it is the second form, then it is past tense. For example, eatगा, ate. यदि फर्स्ट फॉर्म यदि दिया गया है तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट है, और सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये पास्ट फॉर्म है। और यदि सेंटेंस में शैल विल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो आप समझेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये तीनों इंडेफिनिट के पश्चात हम आते हैं परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, शैल विल होगा ही होगा, उसके साथ हैव भी मिलेगा, और परफेक्ट की पहचान एक इजी वर्क ये आपके लिए है कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। दैट मीन्स if the tense, the given sentence belongs to perfect tense, there are 3 perfect tenses. One is present perfect, past perfect, and future perfect. In all the 3 perfect forms, the main verb will be given in the third form. So it is easy for you. You need not have to convert the verb into third form. Already third form will be given. सो आपको क्या करना है, आप उसमें शैल हैव और विल हैव मिला तो आप समझे फ्यूचर परफेक्ट है। हैस या हैव के साथ V3 मिला तो आप समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। एंड इफ द सेंटेंस इज कंटेनिंग हैड प्लस V3 देन आप समझेंगे पास्ट परफेक्ट। सपोज सेंटेंस में इज एम आर में से कोई एक है, वर्ब में ING है, तो आप समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। एंड सपोज इफ देयर इज वाज और वर एंड प्लस वर्ब प्लस ING, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। These are the 8 tenses, and now there is one more in which there will be modal verbs. For example, let us see what are the modal verbs. Shall is a modal verb, will, must, may, might, can, could, should, ought to. These are the modal verbs. When they are used in sentences, they take the first form of the verb with them. So whether it is might or whether it is may, after these there will be first form. So if we are going to learn all these tenses and then going to convert the sentence into passive voice, it will take some more time. So let us go by some tricks. Already I have told you that we have to apply 6 tricks, that is dividing the sentences and then exchanging something to something and then giving a helping verb. These are the 6 steps that we have seen in the previous classes. No? So now let us take the easiest task of converting a sentence from active voice into passive voice. आप देखें कि सबसे पहले हम सरल मेथड से चलें। सरल मेथड से चलने से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। हम सरल मेथड के अंतर्गत सबसे सरल जो टेंस है उसको देखते हैं। यानी आप सेंटेंस को पढ़ें, वी हैड क्लोज्ड द डोर, ये सेंटेंस है,
इसके पार्ट्स कर दिए हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन वर्ब and third one object, fourth one there is no fourth, therefore we should be satisfied with only the three. Now what is the rule? Take the three to the first and then take the first to the place of number 3. So now what we have to do, we know the 6 steps and out of them 2 important steps are there जो कि आपको अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो आप सेंटेंस कन्वर्ट करने में गलती करेंगे. तो उसके लिए आप किसी विशेष शब्द को पकड़ के चलें. वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टन स्पेशल helping verbs which can be identified from the sentence. Suppose there is a sentence in which had is written. In that case आप ये समझेंगे कि ये past perfect है और ये सबसे easy tense है जिसको हम passive voice में चेंज कर देते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है. आप इस सेकंड पार्ट को देखिए, इसमें 2 वर्ब है. इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. ऑलरेडी थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आपको मिलेगा ही. तो आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपकी समस्याएं बहुत कुछ हल हो गई है. आपको केवल एक चीज़ देना है, वो है वन मोर हेल्पिंग वर्ब. जैसे आप देखें, यदि आपके सामने हैड वाला सेंटेंस, आप 100 बात की एक बात पकड़ के चले, यदि आपके सामने हैड वाला सेंटेंस है तो आप उस हैड के बाद बीन लिखिए और हैड के बाद वाले वर्ड को उसके साथ में लिखिए, यानी 2 का 3 कर दीजिए. तीसरा मेंबर बीच में आ जाएगा और वो तीसरा नंबर होगा बीन. सपोज योर सेंटेंस इज कंटेनिंग हैड, देन यू हैव टू ऐड वन मोर हेल्पिंग वर्ब दैट इज परमानेंटली बीन. सो योर सेंटेंस विल बी अगेन converted. Had closed will be converted into had been closed. Now let us solve this sentence. See, this is the third part. Now we have to take it to the first part, the door. Second part, we have to expand the second part by providing a helping verb. And suppose the helping verb is had, then we should write had been. And please repeat the main verb also. Now comes the first part. When we take this first part to the third place, now we have to change the spelling and then we have to write the agent and write the object form of we, that is us. So our sentence has been made. The door had been closed by us. Then we put a full stop and our sentence will be okay, and you are going to get a full mark for that. Again let us see. She had cooked food. अब देखें, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. थर्ड को फर्स्ट में आना है और फर्स्ट को थर्ड की प्लेस में जाना है. तो उससे पहले हम इसको देखें. ये यहाँ पे आने वाले शब्द है तो हम इसको चेंज करके बाई हर लिखेंगे, फूड को हम यहाँ लिखेंगे. अब उससे पहले हम ये देखें कि सेकंड में क्या क्या था. सेकंड में हैड. समस्त जितने भी हैड वाले सेंटेंस है उसमें आप बीन को इंक्लूड कर दीजिएगा बीच में. दोनों के बीच में तीसरा मेंबर बीन. आपका सेंटेंस अपने आप बन जाएगा और ये राइट हो जाएगा. सपोज योर सेंटेंस इज ऑलरेडी पोसेसिंग द हेल्पिंग वर्ब हैड and there will be third form. In between the helping verb and the third form you have to insert BWN been. In which sentence? In the sentence which has a helping verb called as had. If there is had, then you should call it as had been. Now let us see one more sentence. He can draw pictures. 3 parts are there. One is he, can draw is the second part, and pictures third part. Can draw, it has to be expanded. This is a modal verb. All modal verbs should be provided with be. यही एक शब्द है जो मॉडल वर्ब के साथ जाएगा और कोई शब्द इसके साथ ना जाए. यह आपको ध्यान रखना. आप इसको सीखें, एकदम फटाफट इसको समझ ले
जितने भी मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस आए तो उस सेंटेंस में आप ये जो मॉडल वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में बी को लिख दीजिएगा और इस फर्स्ट फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ी समस्या वाली प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कैन हो या मे हो या माइट हो या शैल हो या विल हो, यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस फर्स्ट फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि पास्ट परफेक्ट वाला जो टेंस है ये हैड प्लस V3 वाला, जैसे अभी आपने देखा हैड प्लस क्लोज्ड, हैड प्लस कुक्ड, ये इस प्रकार के सेंटेंस सबसे ईजी है। आपको बीच में बीन प्रोवाइड करना है और अदला बदली करके सेंटेंस को बनाना है। अब आप देखिए एक और सेंटेंस, दे विल अरेंज ए पार्टी। सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो फर्स्ट सब्जेक्ट, विल अरेंज वर्ब है, ए पार्टी ऑब्जेक्ट है। इस ये पार्टी को हम यहाँ ले आएंगे और ये फर्स्ट पार्ट बन गया। और ये विल अरेंज को विल बी लिखेंगे, विल बी अरेंज्ड लिखेंगे, अरेंज्ड, विल बी अरेंज्ड, और उसके बाद बाय लिखेंगे एंड दे को दम में कन्वर्ट करके लिखेंगे और ये आपका ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। ये इस प्रकार आप इस सेंटेंसेस को सबसे इजी वाले जो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक तो हैड है और एक मॉडल वर्ब कैन, एनी वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स, चाहे 7-8 मॉडल वर्ब्स इसमें जो लिखे हुए हैं इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो आप उसमें बी, यहाँ पर बी का प्रयोग करें, यहाँ पर BWN का प्रयोग करें। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।